Hello students, so today we are into the third part of the chapter biomolecules, and in the third part of this chapter biomolecules we are going to discuss about proteins and what this protein is made up of. Okay, from the protein section we generally see many questions comes in the entrance examination. So first we are going to discuss about what is protein. If this question comes even at your board level, you can write these characters, these constituents, these points of proteins. Okay, so protein constitutes 10 to 15% of the total cell mass. So you understand cell, you have studied about cell in the cell chapter. Okay, so whatever is the total cell mass of the protein, be it the protoplast, okay, the cytoplasm or the cell organelles of the cell, these things will have proteins or protein made structure in them. Okay, some part of the constituent of the cytoplasm will be having some protein constituents. Okay, inside some cell organelle or in the makeup of the cell organelle we are going to have proteins present there. So protein is one of the most you can say structural formation करने में रोल रहने वाला molecule. Okay, proteins are the polymers of amino acid. Okay, so these are the monomers. So amino acid here is a monomer, and these amino acids are responsible for the formation of proteins. Okay, so amino acid एक साथ जुड़ेगा, ठीक है, in a long chain, and when this will happen it will form a protein. Okay, so amino acid here it is also considered as basic building blocks of protein. Okay, because we know that amino acid is the monomer, and when these monomers pair up with one another with the help of peptide bond, okay, that is the time when a long chain of amino acid is formed, and that is our protein. Okay? So first we will know that how these two amino acids are connected with one another with the help of peptide bond. हम लोग amino acid को ऐसे करके बार दे दें, छोटा करके A लिख के बार दे देंगे, so that denotes acid. Okay, so this is the structure of the amino acid that we are talking over here. See, it has a carbon backbone, and this carbon is linked with these molecules on the four sides. यहाँ पे हम लोग को N मिलेगा. अब हमको पता है that N further forms two bonds, so यहाँ पे H. Okay, so NH2, COOH. We know that NH2 is a basic group, COOH is a acidic group. Okay, so this is a you can say a formula based representation of amino acid, which is a neutral one, because यहाँ पे we have NH2 एक basic molecule, COOH एसिडिक मॉलिक्यूल, एंड दोनों के प्रेजेंस की वजह से ये मॉलिक्यूल जो है एज ए होल इट बिकम्स न्यूट्रल. ओके, दिस इज द एल्काइल ग्रुप, एंड एल्काइल ग्रुप डिफर्स फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू द अदर. यहाँ पे नंबर ऑफ अमीनो एसिड नहीं लिखा है, लेकिन इट इज सेड दैट देयर आर 20 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट व्हिच टेक्स पार्ट इन प्रोटीन फॉर्मेशन, एंड दोज डिफरेंट 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स are completely dependent on what? The different types of alkyl group that they have. Okay, so what we are going to see that this alkyl group is going to be different for each of the 20 amino acid that is present and that takes part in protein formation. Okay, so alkyl group, for example, if I consider here like this formula is there, H, NH2, COH, and what about this alkyl group? In this alkyl group, if we get CH2H, CH2OH, okay, then this particular amino acid will be called as serine. Okay, so that is the reason that I linked with this alkyl group, that there are 20 amino acid present, and this 20 amino acid differs from one another on what? On their alkyl group. Okay, now proteins are right handed molecule. ठीक है, राइट हैंडेड मॉलिक्यूल, लेफ्ट हैंडेड मॉलिक्यूल, इसके बारे में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट में भी बात किया है. ओके, अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. अब एक मॉलिक्यूल में, जिसकी मैंने यहाँ पे बोला, देखो एक बेसिक ग्रुप है, एक एसिडिक ग्रुप है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस टू, this particular amino acid can be considered as a neutral amino acid. So now in the formula of if any amino acid, if there is present say two acidic group and one basic group, then it will be considered as acidic, because दो acidic एक basic, तो acidic के तरफ incline होगा molecule. वही चीज को यहाँ पे बोल रहे हैं. यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है. See, this is the carbon. We know that carbon forms 4 bonds. यहाँ पे हम लोग 4 bond देख रहे हैं. OH, COOH. This is the acidic group we are talking about. ठीक है, एंड C, ये देखो ये C के साथ यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? NH2, the basic group.
ठीक है, दिस CH3 इज द एल्काइल ग्रुप R, ठीक है, और ये क्या बनाता है, ये एलानिन बनाता है, ठीक है। ये एलानिन एक कैसा अमाइनो एसिड है, इट इज अ न्यूट्रल अमाइनो एसिड ड्यू टू one of each acidic and basic group. If you look at here, this is called as aspartic acid. Here what we will see COOH यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, लेकिन NH2 सिर्फ एक। So एक बेसिक ग्रुप के मुकाबले दो एसिडिक, so this is acidic amino acid. Here in the arginine molecule we will see that there are NH2, ठीक है, NH2, दो NH2 है, एक COOH है, ठीक है। So two basic, one acidic group, hence this is a basic amino acid arginine. So you need to remember these examples because in examples से question आ सकता है। अब हम लोग और भी टाइपिफिकेशन है अमाइनो एसिड्स का, अमाइनो एसिड के बारे में ही काफ़ी पढ़ना पड़ता है इन प्रोटीन्स, अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड एंड ऑन व्हाट बेसिस दे आर divided. So whatever is important I am discussing it here. Next we will be talking about essential, non essential and semi essential amino acid के बारे में next discuss करेंगे, ठीक है। यहाँ तक देखो, so यहाँ पे अभी हम लोग टाइपिफिकेशन में आ गए हैं, ठीक है। एंड इन दिस टाइपिफिकेशन वी आर स्टार्टिंग विद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइपिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड, ओके, दैट द टाइपिफिकेशन व्हिच इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, ओके। सिंथेसिस माने फॉर्मेशन, फॉर्म कर पाना, दैट इज सिंथेसिस। Now on the basis of that we divide amino acid in three types: non-essential, essential and semi-essential. Now what are these entities? Okay, now you need to understand it that there are some amino acids which the cells of your body can form it, okay. So there are some amino acids which can be synthesized in your own body by your body ka cells, okay. So if the amino acid is formed in your own body, so you do not need to consume it from outside, as it is formed at a very requisite amount, at a very required amount in your body itself by its own cells. So if those amino acids are formed in your body, then you do not need to take it in the form of their in your diet, okay. You do not have to eat and consume it, digest it, consume it, ये सब नहीं करना पड़ेगा. Why? Because your body is itself making it in abundance, okay. So these amino acids are not important to include in your diet, ठीक है। तो on the basis of that we consider those amino acids as non-essential, non-essential to include in our diet. क्यों? Because body is synthesizing it. Example: alanine, cysteine, glutamate, ठीक है कि नहीं, ये सब एग्जांपल है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का कैन बी सिंथेसाइज्ड इन दी बॉडी, बॉडी खुद बना सकता है, वी डोंट नीड टू इंक्लूड इट इन द डाइट, हेंस नॉन एसेंशियल। एसेंशियल इसका उल्टा हो जाएगा, दैट मींस दीस आर द अमीनो एसिड्स व्हिच आवर बॉडी कैन नॉट फॉर्म, हेंस यू विल हैव टू ऑब्टेन देम अलोंग विद योर डाइटरी फूड. सो यू नीड टू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, यू विल हैव टू ईट spinach, then eggs, egg yolk, okay. So these amino acids you can obtain it from these things, cannot be synthesized, hence should be obtained from the dietary source. And dietary source वही fish, meat, egg, legumes माने दाल वगैरह, and egg, वो सब खाने से you are going to get it. Pulses also. Semi essential amino acid, अब इसको अच्छे से सुनो, it is formed at slower rates, that means semi essential, half essential. That means these are those amino acids which will be formed in our body will have the ability to form it, but sometime you will need them in more amount. ये वो है नॉन एसेंशियल, वो है जो हमारे बॉडी में abundance में फॉर्म होता है, hence we do not need to include it in our diet. But this is formed in our body not in abundance, it is formed in slower rate. So if your body has more requirement, suppose you go to gym or you are a gymnast or you play some sports or something, at that time the production rate of this amino acid will not be enough in your body, hence you will have to consume this amino acid extra also, okay. So arginine, histidine, they are semi essential amino acid formed at slower rate, hence जो भी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए बाहर जो फूड हम लोग खाएंगे डाइटरी फूड के साथ we will have to supplement it inside our stomach, okay. Then it will go in our body and it will fill up that required numbers or space, okay. Also in some pregnant women, newborn children, the semi essential amino acid ka requirement is more, hence also in case of a pregnant woman or a
baby, newborn baby, the dietary supplement should be given of semi-essential amino acid also, because at that time also the body needs more amino acid. Okay. Now we are coming into the next part, which is the properties of amino acid. So here I have written few properties, then we will discuss another property which is much more important, Zwitter ion concept. Important properties of amino acid. Amino acids are usually colorless, okay, crystalline solids, वाटर सोल्यूबल. अब तक जितना बोला है सब लेकिन एक चीज का कैरेक्टर के साथ मिल रहा है, विच इज समथिंग वी यूज इन आवर डेली लाइफ. कलरलेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, वाटर सोल्यूबल, मेल्टिंग, हाई मेल्टिंग सॉलिड्स, बिहेव्स लाइक सॉल्ट. इसके बारे में मैं बोल रहा था. अगेन बिकॉज़ सॉल्ट इज समथिंग व्हिच इज we keep it together, hence it looks white, but if you isolate the grains, then it is colorless, crystalline solid, it is crystal, not smooth, water soluble, पटक से घुल जाता है, high melting solids, and we are talking about salt. So amino acids are also exactly just like salt. Their behavior is inclined towards acidic pH little bit. Okay, so I hope you understood this part. Now we are going to another property and the important one, which is Zwitter ion concept. So this is again the another concept regarding the amino acid. In the properties of amino acid, you can also write this as one of the property of amino acid. Okay, so Zwitter ion concept. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है that inside the cell synthesizes or produces some proteins. Okay, amino acid peptide bond से एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए जाएगा, and that is going to result in the formation of a long polypeptide chain, because many amino acids are connected. है ना, ऐसा अगर हो गया ये अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड, अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड, अमाइनो एसिड, लाइक दिस, अमाइनो एसिड बीच में पेप्टाइड बॉन्ड, अमाइनो एसिड बीच में पेप्टाइड बॉन्ड. तो अगर एक लंबा चेन, उसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन बोल सकते हैं कि, मतलब पॉलीपेप्टाइड माने बहुत सारा पेप्टाइड बॉन्ड है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन दैट मींस अ चेन व्हिच इज मेड फ्रॉम द elongation of amino acid one after another connected by the peptide bond, है ना. So whenever these amino acids are present in the cell's cytoplasm, cell अपने अंदर cell organelles के मदद से it forms proteins, and those proteins, those amino acids, it forms amino acids, sorry, inside the cell some cell organelles synthesizes as well as it gets from outside also, and amino acids gets accumulated inside the cells इंटरनल स्पेस इन द साइटोप्लाज्म. सेल का ऑर्गेनेल ने खुद बना के भी साइटोप्लाज्म में छोड़ा, और जो आसपास सेल के आसपास से ब्लड जा रहा है, ब्लड से भी अमाइनो एसिड को सेल ने उठा के अपने साइटोप्लाज्मिक एरिया में रख दिया है. सो व्हेनेवर द अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मिक पोर्शन ऑफ ए सेल, व्हेन द अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मिक पोर्शन ऑफ द सेल इन कांटेक्ट विद द प्रोटोप्लाज्म, in contact with the cytoplasm or the aqueous solution or the पानी का content of the cell, तब जो अमाइनो एसिड है वो अमाइनो एसिड में कुछ रिएक्शन होता है जिसके वजह से वो आयोनिक फॉर्म में आ जाता है, and that ionic form of amino acid is called as Zwitter ion या Zwitter ionic amino acid. Okay, so whenever amino acids are present in the free cytoplasm of the cell, there the amino acids tend to undergo some kind of reaction, and due to that in the amino acid we see it converts into a ionic structure, and it is present in the form of Zwitter ionic amino acid. Okay, so being in aqueous solution, basic substances always have a tendency to accept a hydrogen ion, whereas the acidic group, COH group, will lose one hydrogen ion. Okay, this behavior is called as amphoteric behavior, where both the acidic and basic ग्रुप में हाइड्रोजन आयंस का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन होता है. ठीक है, दिस बिहेवियर इज कॉल्ड एज एम्फोटेरिक बिहेवियर, व्हिच वी सी ओनली व्हेन द अमाइनो एसिड इज इन व्हाट सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन. सो इन प्रोटोप्लाज्म, दैट इज द फ्री साइटोप्लाज्म, फ्री अमाइनो एसिड occurs as ions. Okay, this is also considered to be a isoelectric point. Isoelectric point या isoelectric pH of a cell, वो pH है जहाँ पे सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होता है. ओके, सो इट इज दैट पीएच प्रेजेंट इनसाइड द सेल वेयर द अमाइनो एसिड्स डोंट मूव, दे आर फाउंड इन अ स्टैग्नेंट पोजीशन, रुका हुआ है, दे आर नॉट मूविंग इनसाइड द सेल. ओके, दैट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. यहाँ पे देखो ये एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल है, यहाँ पे एसिडिक ग्रुप, यहाँ पे बेसिक ग्रुप,
जैसे एक्वा सोल्यूशन में डाला, एक हाइड्रोजन आयन इसमें आ गया, ये देखो N ने एक हाइड्रोजन आयन गेन किया है इसलिए प्लस, नहीं तो N नेचुरली यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन को रख सकता है, एक और हाइड्रोजन आया है NH2 के जगह, ये NH3 हुआ है तो गेन किया है एक्स्ट्रा आयन तो प्लस, और COOH H यहाँ से निकल के चला गया इसलिए माइनस, और दोनों ऑक्सीजन को एक फुल बॉन्ड और एक पार्शियल बॉन्ड के साथ इस कार्बन ने पकड़ के रखा है. So this is your Zwitter ionic amino acid. So any amino acid which is present in aqueous solution at isoelectric point, it will be found in the form of Zwitter ionic form, and this is your Zwitter ionic form. Okay. Next we are coming into the types of proteins. So in types of protein we are going to get 2 types of protein on the basis of structure, and then we will also discuss about the structure of protein. Next discussion, structure of protein. So here this is called fibrous protein. पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है, मैंने बोला कि अगर हम लोग आज एक लंबा ऐसे एक लाइन खींच दे, सो दिस कैन बी आल्सो पॉलीपेप्टाइड चेन. हाउ we will just need to imagine it like this: amino acid, peptide bond, amino acid, peptide bond, amino acid, peptide bond, amino acid, like this. सिर्फ ऐसे हम लोग को इमेजिन करना होगा कि पेप्टाइड बॉन्ड से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक अमीनो एसिड ऐसे करके एक लाइन में जुड़ा हुआ है. दिस इज पॉलीपेप्टाइड चेन. सो फाइब्रस प्रोटीन में क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन पैरेलल, सी दे आर रनिंग पैरेलल, ओके, एंड आर हेल्ड टुगेदर ईदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, माने इन दोनों के बीच में ऐसे करके हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, और यू विल सी डाइसल्फाइड बॉन्ड, ऐसे करके डाइसल्फाइड बॉन्ड हो सकता है 2 चेन के बीच में, जो 2 चेन को पैरेलल रन भी कराता है और एक दूसरे के साथ आसपास पकड़ के भी रखता है. So this kind of protein where the polypeptide chain are connected to each other either by hydrogen bond or by disulfide bond, that forms what? A fibrous protein. Fibrous proteins are mostly fiber or wire like structure. Wire तो देखा होगा, wire को जब हम लोग ऐसे ऊपर का रबर का कोटिंग हटा देते हैं, अंदर क्या देखते हैं? There are some लंबा लंबा रॉड लाइक फाइबर्स प्रेजेंट जो एक दूसरे के पैरेलल रन कर रहा है. तो ये फाइब्रस प्रोटीन भी वैसा ही है, ठीक है. इसका पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के पैरेलल रन करता है. एग्जांपल कोलाजन, केराटिन, ये सब फाइब्रस प्रोटीन है, ठीक है. ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, इसमें क्या होगा, ये जो एक ही चेन है ना, एक ही चेन के बीच में यहाँ पे देखो पेप्टाइड बॉन्ड ऐसे करके प्रेजेंट, इसलिए ये सीधा है. लेकिन आज अगर ये अमीनो एसिड और ये अमीनो एसिड के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो, तो ये दोनों भी तो पास आना चाहेगा, तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, ऐसा होगा कि नहीं. ये जो लाइन है, ये लाइन ऐसा हो जाएगा कि नहीं, बिकॉज if this amino acid are connected by peptide bond, okay, but if it is also connected by hydrogen bond, then ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन होने की वजह से ये जो लाइन है, ये लाइन ऐसे सीधा से क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे होगा ये पहला अमीनो एसिड, यहाँ पे होगा दूसरा, यहाँ पे होगा तीसरा, और दूसरा और तीसरा के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड, ये है चौथा, लाइक दैट, ठीक है ना. तो इस तरीके से क्या होता है, विद इन अ चेन मोर देन 1 बॉन्ड स्टार्ट्स कमिंग, okay, as well as in between 2 chain there can be multiple bonds present, जो इनको मतलब ऐसे पैक करता है कि ये एक ही चेन ऐसे ऐसे करके फोल्ड होते होते उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, अल्टीमेटली गोल बन जाता है, ग्लोब लाइक, ठीक है. वही चीज लिखा है, देखो, spherical in shape globular proteins due to the presence of multiple bonds in one polypeptide chain or even more multiple bonds, the structure becomes globe like, ठीक है. मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो रैंडम बॉन्डिंग हुआ है जहां तहां, ठीक है, ड्यू टू विच फोल्ड्स आते गया और आते 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 अल्टीमेटली ये मॉलिक्यूल ग्लोब शेप का हो जाता है. एग्जांपल ग्लोबिन इज हेमोग्लोबिन जो हमारा बॉडी में गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है कि नहीं. तो हेमोग्लोबिन का ग्लोबिन वो भी गोल प्रकार का है. एल्ब्यूमिन दैट इज आल्सो ग्लोब लाइक, ओके. सो दीज आर योर 2 types of protein that I had to discuss. Now we will talk about the स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैसा होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेने से ऑटोमेटिक सारा इंपॉर्टेंट पोर्शन इस पार्ट का हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. मूविंग ऑन. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, एंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स यू कैन सी देयर आर 2 स्ट्रक्चर जिनके बारे में यहाँ पे बात किया है, और 2 बात करेंगे, ठीक है. सो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देन वी विल टॉक अबाउट टर्शियरी एंड quaternary structure. So in primary structure what we will see that it is a non-functional protein, okay. These are the basic structure of the proteins where amino acids are arranged serially following a linear chain. तो इसमें बस क्या होगा, एक ही बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है. in the entire chain only one type of bond is present and that is this one which is a peptide bond. So amino acid, peptide bond, amino acid, peptide bond, amino acid, peptide bond, amino acid, so on. We will see one amino acid is connected with the another with the help of peptide bond only.
तब जाके एक लीनियर स्ट्रेट चेन फॉर्म होगा, और लीनियर स्ट्रेट चेन वाले स्ट्रक्चर को हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। सेल के अंदर जब सेल ऑर्गेनिल्स प्रोटीन्स को बनाता है, ठीक है ना, तब सेल ऑर्गेनिल्स मान लेते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके अंदर प्रोटीन्स को बनाया जाता है। तो जब ये लोग प्रोटीन्स को बना के व्हेन दे रिलीज इट इनटू द साइटोप्लाज्म, दे ऑलवेज रिलीज इट इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर। इन द साइटोप्लाज्म दिस प्रोटीन्स somewhere interact with one another inside the cell's cytoplasm region, and due to that interaction it complicates its structure and it forms the other structure like secondary, tertiary, quaternary इत्यादि। इत्यादि नहीं होगा, ये चार ही है, सॉरी नॉट नो इत्यादि, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड के बीच में, तो ऐसे आएगा, ठीक है। ये है तुम्हारा प्राइमरी स्ट्रक्चर का डिस्कशन। नाउ वी आर गोइंग टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, द चेन ऑफ अमीनो एसिड इंटरैक्ट अमंग देमसेल्फ। यहाँ पे अमीनो एसिड के बीच में, अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही, पी बॉन्ड लिख देता हूँ, पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही, बट पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा भी सपोज ये अमीनो एसिड 1, ये 2, ये 3, 1 और 3 के बीच में हम लोग देखेंगे एक और बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो जिसके वजह से ये चेन जो ऐसे सीधा था, वो ये फॉर्म होने की वजह से वो चेन अभी कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है तुम लोग को, चेन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा अमीनो एसिड 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, और पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, तो 1 और 2 के बीच में ये है पेप्टाइड बॉन्ड, ये है पेप्टाइड बॉन्ड, और 1 और A3 के बीच में एक और बॉन्ड हुआ है जिसने चेन को ऐसे करके मोड़ दिया है। ये बॉन्ड है क्या, ये बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा एक और बॉन्ड के थ्रू इंटरैक्ट करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, व्हिच ब्रिंग्स सम फोल्ड्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, एंड दिस स्ट्रक्चर्स आर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो अभी ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये स्ट्रक्चर्स 3D शेप का है, ठीक है, एंड ये स्ट्रक्चर देखने में कैसा होगा, ऐसा होगा, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, जिसमें चेन ऐसा हो जाएगा। इसमें मतलब बेसिकली ऐसा हो रहा है, देखो अमीनो एसिड 1, ठीक है, अमीनो एसिड 2, यहाँ पे आ जाएगा अमीनो एसिड 3, फिर ये हो जाएगा अमीनो एसिड 4, तो ये 1 और 3 के बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, H बॉन्ड, ठीक है। फिर अमीनो एसिड 4, अमीनो एसिड 5, यहाँ पे आ जाएगा अमीनो एसिड 6, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा अमीनो एसिड 7, वैसे करके चेन घूम रहा है, तो ये 3 और 7 के बीच में यहाँ पे भी कुछ बॉन्ड है, तो ऐसे करके होने की वजह से वो ऐसे करके घूम जाता है। सो इन अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन more than one hydrogen bond भी more than this peptide bond hydrogen bonds are also there, जो मॉलिक्यूल में, जो इस चेन में फोल्ड्स लाता है, जिसकी वजह से ये चेन ऐसे ऐसे घूमता है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, लाइक बीटा प्लेटेड शीट में क्या होगा, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसका अपना यहाँ पे है अमीनो एसिड 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 2 3 4, तो सपोज ये पॉलीपेप्टाइड चेन और ये मतलब इन बिटवीन ये है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन इंट्रा पॉलीपेप्टाइड चेन। एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के 2 अमीनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन 2 है, ठीक है कि नहीं, और ये है एक पॉलीपेप्टाइड चेन का अमीनो एसिड 1, ये दूसरा, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, 2 के बीच में आ गया, 3 के बीच में आ गया, इसलिए प्लिट्स फॉर्म हुआ है। ऐसे करके प्लिट्स आर बीइंग फॉर्म, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। Okay, so I hope you understood also about the secondary structure of protein. Now we will go to tertiary structure and quaternary structure. So here we are talking about the last important part of the structure of protein. The 2 more structure. One is called as tertiary structure, Tertiary, tertiary structure. Okay, and another is called as quaternary structure. Okay, so ये और advanced level के structures हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर में हम लोग को क्या मिलेगा, अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, ओके, विथ मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर, लाइक क्या क्या बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन सल्फर कंटेनिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, सल्फर कंटेनिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, एंड आयोनिक बॉन्ड, इसमें सबसे वीकेस्ट है हाइड्रोजन, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट ये है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, एग्जांपल एंजाइम्स, हमारे बॉडी के एंजाइम्स,
एल्ब्यूमिन, मायोग्लोबिन. एल्ब्यूमिन इज अ प्लाज्मा प्रोटीन, हमारे ब्लड के प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाया जाता है कॉल्ड एज एल्ब्यूमिन. मायोग्लोबिन इज अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द मसल, हेल्प्स इन मस्कुलर रेस्पिरेशन. ये सब बाद में मिलेगा. तो बेसिकली पॉइंट ये है कि इन द टर्शियरी स्ट्रक्चर वी विल फाइंड अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन व्हिच विल बी कनेक्टेड विद मल्टीपल बॉन्ड्स. देखो बॉन्ड्स बढ़ रहा है. प्राइमरी में एक ही था पेप्टाइड, सेकेंडरी में पेप्टाइड के साथ हाइड्रोजन भी आ गया, उसके लिए अल्फा और बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर बना. टर्शियरी स्ट्रक्चर में बॉन्ड्स विल इंक्रीज एंड हाउ मेनी इट विल बी 5. सी एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है, जिसमें एमाइनो एसिड एमाइनो एसिड एमाइनो एसिड एमाइनो एसिड एमाइनो एसिड ये सब दिया. तो ये जो एमाइनो एसिड के बीच का है ये क्या है? पी बॉन्ड, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड, द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वन. इस एमाइनो एसिड और इस एमाइनो एसिड 1 2 3 4 5 1 और 5 के बीच में वी सी अ बॉन्ड व्हिच इज आयोनिक बॉन्ड. 2 and 3 के बीच में वी आर सीइंग अ बॉन्ड व्हिच इज हाइड्रोजन बॉन्ड. 5 और 6 के बीच में हम लोग को मिल रहा है डाइसल्फाइड बॉन्ड. ओके, एंड यू कैन सी 4 and 7 इन दोनों के बीच में हम लोग को मिल रहा है एक और बॉन्ड व्हिच इज कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक बॉन्ड. सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 2 3 4 and 5, due to the presence of these 5 bond in one polypeptide chain, the structure becomes folded and it looks globular. Hence this is a tertiary structure of a protein. ऐसे होगा tertiary structure and these are your example. Okay, then we come to the quaternary structure. Quaternary structure is more complicated structure. Okay, in quaternary structure we see that it is a very hodgepodge kind of structure. क्यों? Because it is formed by a protein which has more than one subunit, that is इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ टर्शियरी प्रोटीन. ये जो टर्शियरी प्रोटीन है, ये टर्शियरी प्रोटीन अगर एक से, दिस इज वन पॉलीपेप्टाइड चेन, इफ दिस काइंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर इफ इट इज मोर देन वन, अगर इस तरीके का दो स्ट्रक्चर को अगर हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है कि नहीं, या फिर दो से भी ज्यादा, ठीक है, तब जाके क्या स्ट्रक्चर बनेगा? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनेगा. ठीक है, और ईच पॉलीपेप्टाइड चेन हैज प्राइमरी सेकेंडरी tertiary structure of its own. मतलब it will have to be more than one polypeptide chain and each of the polypeptide chain can be at different level also or at same level also. Suppose 4 polypeptide chain से बना हुआ है. अब 4 में से ऐसा हो सकता है कि 2 का स्ट्रक्चर टर्शियरी है, 2 का स्ट्रक्चर सेकेंडरी है, ठीक है कि नहीं? या फिर ऐसा हो सकता है कि 4 में 2 प्राइमरी है, 2 सेकेंडरी, ऐसा भी हो सकता है. या ऐसा भी हो सकता है चारों का चारों टर्शियरी, ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके का चेन से ये बनता है एंड दिस चेन्स आर ऑफ सेम लेवल ऑफ स्ट्रक्चर. क्वाटरनरी से नीचे का किसी सेम लेवल का हो सकता है, चारों का चारों प्राइमरी, चारों का चारों सेकेंडरी, चारों का चारों टर्शियरी, या फिर एक प्राइमरी एक सेकेंडरी 2 टर्शियरी, ऐसे भी हो सकते हैं, एनी कॉम्बिनेशन, ठीक है कि नहीं? द वे in which these individual folded peptides are arranged with the respect to each other gives the architecture of quaternary structure of a protein. ठीक है, सो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को अगर मैं ड्रॉ करूं तो सपोज ये एक चेन है, ये एक चेन है ऐसे, तो ये स्ट्रक्चर जैसा बन रहा है कि नहीं, ये फोल्ड होते होते ऐसा होगा कि नहीं? अब इसके साथ और 2 चेन है, एक ब्लू में है, वो भी टर्शियरी स्ट्रक्चर में मान लेते हैं, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? और एक है ब्लैक में, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे करके ये हॉच पॉच हो जाएगा और रैंडम बॉन्डिंग होगा, ठीक है कि नहीं? मॉलिक्यूल्स में इस तरीके का बॉन्डिंग हो सकता है. जो भी प्राइमरी का बॉन्डिंग था वो होगा, सेकेंडरी का जो था वो होगा, टर्शियरी का जो था अपना वो होगा. हर एक चेन का अपना बॉन्डिंग हो सकता है एंड दे विल गेट इंटरमिंगल विद वन अनदर, विल फॉर्म अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, गोल टाइप का स्ट्रक्चर, बट इंटरमिंगल होके उसका कोई क्लैरिटी नहीं मिलता है हम लोग को. तो इस तरीके का स्ट्रक्चर को हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं. एग्जाम्पल देखो क्या दिया है, हेमोग्लोबिन Hb. हेमोग्लोबिन जो है, ये हेमोग्लोबिन कितना चेन से बनता है? ये 4 चेन से बनता है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन. टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है, 2 अल्फा 2 बीटा चेन. ओके, एंड दिस चेन्स इंडिविजुअली विल बी ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर, और फिर ये लोग अपने बीच में इंटरमिंगल हो जाएगा, होके हेमोग्लोबिन का मतलब ग्लोबिन प्रोटीन बनाता है. हेम तो बेसिकली एक आयरन है जो ग्लोबिन के साथ जुड़ा हुआ है. ग्लोबिन में बेसिकली द प्रोटीन है जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का है, ठीक है? सो आई हैव डिस्कस्ड ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ प्रोटीन्स and some of the points are in your notes, so please watch it from there only. If you don't understand it anything, you can ask me. Whatever is the important portion of the proteins, all those important aspects I have already discussed. If you have any more doubt from the remaining parts, there are few small and easy parts which I have not discussed, वो तुम लोग मुझसे देख लेना.
In the next video I will be talking about nucleic acid, and then I will make 2 more videos of enzyme. So इस वीक का कोर्स इस वीडियो के साथ खत्म होता है. देख लेना, कुछ डाउट होने से पूछ लेना. बाय बाय, टेक केयर.